Let's share the screen first. Are you getting the screen, please? Yes, sir. So after Yes, sir. having seen many important concept regarding the crystal structure, as you know from the last few days, we are dealing with the crystal and crystal structure. Many important concept, many important articles related to the crystal structure we have seen. You are highly expected to go through the different videos, like it, subscribe the channel, see that all videos one by one. In addition to our regular lecture videos, many other videos are also available on the YouTube related with the crystal structure in the simple language, in Hindi and in simple English also, because this crystal structure of this particular chapter is most important from the, not from the only examination point of view, but this is also most important from the study of solid state physics is concerned. Because generally what happen, this crystal structure and terms related with this solid state physics are found to be slightly tough as far as the understanding is concerned. समझने के नुक्ते नजर से ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कुछ बुनियादी बातें हैं, थोड़ी सी समझने में मुश्किल जाती है। उसकी वजह यह है कि ऐसा ओपन आई से या ओपनली इसको बताया नहीं जा सकता। सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, और कैसे एक्सिस है, और कैसे अल्फा बीटा गामा है, सेल पैरामीटर्स हैं, जो इसकी खास किस्म की एक स्टडी होती है जो एक्सरे डायफ्रेक्टोमीटर वगैरह से देखी जाती है। तो थियोरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकली ऐसा ओपन करके बताने के लिए आपको तुरंत मौजूद नहीं है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, थियोरेटिकल पॉइंट ज्यादा है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप बार बार बुक्स पढ़िएगा, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में रेफरेंस बुक है तो वो पढ़िए। उससे बेहतर ये है कि ऑनलाइन जाकर आप जो है तो उर्दू, हिंदी और सिंपल इंग्लिश में उसके वीडियोस हैं वो भी देख लें। हमने भी कोशिश की कि जितना हुआ उतना जो है तो देर क्यों नहीं होती, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बताएं। सो वी हैव ट्राइड ऑन आवर लेवल बेस्ट टू communicate with to you the different terms and aspect related with the crystal structure, and I hope up till now you might have got some many concept, कुछ तो आइडियाज आपके क्लियर हुए होंगे, भले ही पूरा चैप्टर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। एम आई करेक्ट? कुछ टर्म्स तो क्लियर हुए आपके, यूनिट सेल वगैरह। Yes, sir. यूनिट सेल है, Yes, sir. है, ब्रेविस लाइटिस है, ठीक है। Yesterday we have seen an important article, Miller indices, isn't it? कि प्लेन जो रहती क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जो प्लेन बनती है, ये प्लेन जब एक्सिस में से पास होती है तो एक्सिस को जहां पर वो मुनक़ता करती है, जहां से वो पास होती है, पास होने के बाद वो तीन एक्सेस में किसी को पैरेलल रहती, किसी को परपेंडिकुलर रहती, उस हिसाब से जो तो उसके इंटरसेप्ट बनते हैं। And when we take the intercept of this plane with the different crystallographic axis, then take the reciprocal of this intercept, and these three reciprocals of the three consecutive intercept give rise to an important term that is called as the Miller indices of the crystal structure. And Miller indices are most important in order to determine the spacing between the planes of the different, in case of crystal structure, different plane के दरमियान जो spacing है उसको इम्पोर्ट निकालने में सबसे बड़ा रूल कौन प्ले करते हैं? HKL वैल्यूज, क्योंकि फार्मूला क्या है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का? D is equals to 1 upon under root h square plus k square plus l square, लेके ना आपको निकल। Do you remember? Yes, sir. So the Miller indices, then interplanar spacing, all these things we have seen. So as you know, from the last few days we are dealing with the crystal structure, and in the crystal structure atoms or ions are arranged in a particular periodical manner or in a systematic manner at the different corners or at the center or at the body, isn't it? And this particular arrangement or this periodical arrangement of the atoms in the crystal structure give rise to one more term, and that term is called as coordination number.
that term is called as coordination number. But before going to the exact definition of the coordination number in case of the crystal structure, one more term I would like to share with you, that is called as atomic radius. Because we know that element is made up of large number of atoms, isn't it? हमको मालूम है ना कि एटम एलिमेंट किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है. ये एटम का ही सिस्टमेटिक लगे हुए हैं क्रिस्टल के अंदर. बराबर बोल रहा हूँ कि मैं? आर यू एग्री विथ दिस माय स्टेटमेंट? यस सर. तो अब ये Yes, sir. एटम जो है तो बहुत सारे क्रिस्टल, क्लोरीन का एटम है, ब्रोमीन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है, फेरस का एटम है, नियॉन का है, नाइट्रोजन का एटम है. तो ये जो एटम्स हैं, अब एटम किसके बने हुए हैं? एटम भी दो हिस्सों पर तकसीम है. अपन गुज़िश्ता सेमेस्टर में भी पढ़े जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे कि भाई एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट. वन, इट इज द सेंट्रल न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड सेकंड वन इज electrons which are revolving around the nucleus in circular orbit. Are you agree with this my statement? बहुत सारे ऑर्बिट. यस सर. पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी दूर जो रहेगा ऐसा रहता ना 1 2 3 4, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी रहता, नियरेस्ट क्लोजेस्ट ऑर्बिट भी रहता. आर यू एग्री? तो द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एटम न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दरमियान का जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन nucleus of atom to the outermost orbit or outermost orbital of an electron is called as atomic radius. समझ में आ रही बात? atomic radius किसको बोलेंगे? अपने को मालूम है? Yes, sir. यस. ये न्यूक्लियस है कि नहीं? ये पहला ऑर्बिट, ये सपोज दूसरा, तीसरा, चौथा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो ये सेंट्रल न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दरमियान का जो फासला है, that फासला, that radius, that distance between the nucleus to the outermost orbit of the, ये ऑर्बिट में कौन फिर रहे जी? इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ऑर्बिट किसका हुआ फिर? इलेक्ट्रॉन का. Electrons. तो इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान के फासले को क्या नाम से पुकारेंगे आप? Atomic radius. Atomic radius. Have you got the answer now? देखने के लिए अगर बताए हम अगर आपको यहाँ पर, तो you found that another alternate definition you may give as a half of the distance between the two bonding atoms. दो एटम रहते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में H2 रहता, बराबर है क्या? ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, दोनों कैसे हैं स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में कैसे बने रहेंगे? बॉन्ड रहेंगे ना इनके दरमियान. तो ये जब बॉन्डिंग Yes, sir. होती है तो हाइड्रोजन एटम की, तो ये यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को भी क्या बोलते हैं हम? क्या? एटॉमिक रेडियस. Atomic radius. ठीक है. अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, सिंपल डेफिनेशन तो ये है, लेकिन एक अल्टरनेट डेफिनेशन यहाँ पे ये कही जा सकती कि जब किसी मॉलिक्यूल में एटम जब एक बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, तो उस वक्त जो है तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स in the bonding atoms of the nuclei in that particular molecule is nothing but it is called as the atomic radius. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? एक बीच में की एक नई चीज अपने को बोलने की थी. चले आगे. अपने को आप भी देखना क्या है फिलहाल, क्या मकसद है अपना देखना? कोऑर्डिनेशन नंबर. अभी तक अपना नॉलेज क्या बताता कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स हैं, बराबर है? एटम्स अलग अलग कॉर्नर्स पे हैं. आर यू एग्री? यस सर. एक सेंट्रल न्यूक एक बीच में रहेगा. Yes, sir. उसके अतराफ आइटम्स की एक मखसूस तरतीब है. ये तरतीब जो है जब रिपीटेड उससे आती तो हम उसको यूनिट सेल बोलते. आर यू एग्री? नाउ द नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर दैट एन एटम हैज इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या रहता? एटम रहते. तो सेंट्रल न्यूक्लियस या सेंट्रल एटम के अतराफ जो करीबी जितने भी रहेंगे, 1 2 4 5, नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझता? बोलते रहिए अनम्यूट करके. क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. यस सर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स हैं, Yes, sir. एटम्स हैं, एटम है या आयन है, ये कैसे रखे हुए हैं? बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, Proper arrangement में. प्रॉपर अरेंजमेंट है. तो अब ये प्रॉपर अरेंजमेंट में कोई करीब है कुछ दूर है, ये बात को मानते क्या आप? तो सेंट्रल Yes, sir. तो सेंट्रल एटम के अतराफ इक्वी डिस्टेंस वाले
करीबी पड़ोसी एटम्स का जो नंबर रहेगा, जैसे करीब में 4 है, करीब में 6 है, करीब में 2 है, करीब में 12 है, जो भी नियरेस्ट रहेगा, किसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये टर्म किससे रिलेटेड है? पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आर यू एग्री? दिस टर्म क्रिस्टल Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर इज Yes, sir. with the crystal structure. You are also familiar with the fact that the crystal structure is made up of atoms which are arranged in a lattice, which are arranged in a lattice. In the lattice, these atoms, some atoms are very nearest neighbors from the central atom, from the central atom में न्यूक्लियस, उसको थोड़ी देर के लिए बोल दिए। तो इस न्यूक्लियस के करीब के जितने भी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स रहेंगे, वो नंबर क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट क्रिस्टल। दैट एटम विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट क्रिस्टल। Atom. समझ में आ गया क्या आपके? फिर एक बार सुन लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर दैट एन एटम हैज इन द गिवन स्ट्रक्चर। समझ में आई क्या टर्म? क्या अभी और रिपीट करूं? Yes, sir. और एक बार Yes, नीचे sir. देखिए। नीचे करने के बाद और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम in a given molecule or in a given crystal is nothing but it is equal to the total number of atoms या total number of ions या total number of molecules which are bounded in the atom। समझ में आ गई बात? और सिंपल करके बोल रहे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर या क्रिस्टल लेटाइस के अंदर बाउंड रहने वाले टोटल नंबर ऑफ आयंस को या एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को क्या बोलिए आप? क्या नाम से पुकारिए? Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि जब एक बॉन्ड बना, एक मॉलिक्यूल बना, उसमें हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 3 ऐसे रहते ना बॉन्ड, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम जो बाउंड है क्रिस्टल के अंदर, वो नंबर या एटम के अंदर या क्रिस्टल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल के अंदर के नंबर ऑफ एटम्स की तादाद किस नाम से पुकारी जाएगी? कोऑर्डिनेशन। Coordination. कोऑर्डिनेट करो। वो कोऑर्डिनेट करके जो मॉलिक्यूल को जन्म देते ना, वो कोऑर्डिनेट करके जो क्रिस्टल लेटाइस बनता ना। एम आई करेक्ट तनज़्ज़ा? आर यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट कोऑर्डिनेशन नाम पे से कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। कोऑर्डिनेटर क्या काम करता है? कोऑर्डिनेटर अपना कोऑर्डिनेटर जो है, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके दरमियान बात को कोऑर्डिनेट करता है, उनकी भी सुनता, अपनी सुनता, आपस में तालमेल रहता, उधर से क्या गाइडलाइंस आए। तो जो कोऑर्डिनेट करेगा, जो मिलाएगा, मिलाने वाला अंदर का जो मीडिएटर है, दैट मीडिएटर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल जिन्होंने मिलकर किसको बनाया है? एक क्रिस्टल लेटाइस को बनाया है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। द एटम्स और आयंस ऑफ द मॉलिक्यूल that are bounded on the central atom या central molecule और ion are called as the ligand। इसका और एक नाम जो इसको सब आर्टिकल के तौर पर देखा जाए उसको क्या बोलते हैं? लिगैंड। सुने होंगे आपने, एक थायूरिया इज ए लिगैंड। ये सुन लीजिए, लिगैंड किसको बोल रहे हैं? एटम या आयंस या मॉलिक्यूल that are bounded in the central atom, यानी कि टोटल एक सेंट्रल एटम में जो पूरा एटम मॉलिक्यूल मिलकर जो एक बॉन्ड बना ना, तो उसको क्या नाम से पुकारते हैं अपन? लिगैंड। Ligand. तो लिगेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इज कैलकुलेट। अब ये कैसे कैलकुलेट करना? तो दैट इज डिपेंड, द लिगेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली व्हेन कंपेयर टू द कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन ए क्रिस्टल। यानी कि इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करके आप लिगेंसी मालूम कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर ले, समझ में आया कि तुम्हारे को इतना क्या बोलना चाह रहे हैं हम? Yes, sir. चलिए एक मिसाल ले Yes, sir. कि भाई एक पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक समझता कीजिए आपको। H2 ये पॉलीएटॉमिक है क्या डायएटॉमिक है? Monoatomic है, sir. यानी कि Diatomic. तो एटम्स अगर 2 होंगे तो डायएटॉमिक, एक ही एटम वाले होंगे तो मोनोएटॉमिक, और एक से ज्यादा एटम्स का अगर मजमुआ होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? पॉलीएटॉमिक आयंस या मॉलिक्यूल। So in case of the polyatomic ions and molecule, coordination number corresponding to the given atom can be calculated by counting the total number of atoms which are bounded in a single bond or in a double bond or in a triple bond।
समझ में आएगा? एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे मालूम करेंगे आप वो कैसे मालूम करेंगे कि आप काउंट करेंगे कि टोटल एटम सिंगल बॉन्ड में कितने हैं, रहता ना अंदर सी डबल बॉन्ड सी एच रहता ना, आपको बता दो एक फिगर आपको। तो कुछ एटम जो है तो काय में जुड़े हुए रहते मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड से, कुछ काय में जुड़े हुए रहते डबल बॉन्ड से, कुछ डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम्स को कैलकुलेट कीजिए, गिनिए, एंड दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बोथ एटम्स व्हिच आर बाउंडेड विद द सेंट्रल एटम either in single bond or in a double bond or in a triple bond that give rise to the coordination number of that polyatomic molecule. For example, polyatomic molecule, one example is given here, CrNS3 2 CClBr2. The coordination number of the central cation, कौन सा cation है यहाँ? Chromium Cr3 plus. It can be counted by the total number of atoms bounded to the chromium atom, which is founded to be 6. यहाँ पे वैसा नहीं समझ में आ रहा था फार्मूले में। यहाँ देखिए अब CO in example provided above, it can be observed that the coordination number of the central cobalt atom is 6. It is bounded in 6 different nitrogen atoms, है क्या जी? ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में देखे होंगे। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आर यू एग्री विद दिस टर्म? सुना आपने कभी? यस सर। हाँ, तो ये देखिए ये सेंटर में कौन है? कोबाल्ट। अरे कोबाल्ट के तब कितने जो है तो मॉलिक्यूल या आयन्स या एटम्स काम कर रहे हैं? 6। ठीक है, और ये नाइट्रोजन वाले, और बाद में ये Cl3 अलग है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम गिनना चाहे तो कितने हो गए? 6। आया समझ में आपको? अब पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, डेफिनेशन समझिए आपको। यस सर। यस। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो कैसा निकालते हैं, वो उनकी वो आयन्स या वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल जो सेंट्रल के अतराफ किसी न किसी बॉन्ड के अतराफ जुड़े हुए रहते, ये टोटल नंबर किसको जन्म देता? कोऑर्डिनेशन नंबर को। इसलिए यहाँ अच्छी तरह से समझो कि आगे हम अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, डायरेक्ट वहां तेजी से जाएंगे हम। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ लिगेंड एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन स्पेसिफिक फॉर गिवन मेटल आयन इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन। अब एक आपके सामने एग्जांपल रखे मिसाल के तौर पर, CONS3 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा इसके अंदर? अभी थोड़ी देर पहले देखे ना अपन ने, 6। ठीक। AgNS3 2 क्योंकि ये Ag सेंटर में रहेगा, उसके आएगा समझ में? यस सर। और ये बीच में जो NH3 दो साइड से जाएंगे। और द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखिए यहाँ पर भी अगर बताने की कोशिश करें, अब ये जो है लिंकेज जैसा, ये जो बॉन्डिंग है सीधी बॉन्डिंग है, कैसी है ये? लीनियर। हमेशा लीनियर रहेंगी जरूर नहीं है, आपको मालूम है टेट्राहेड्रल भी रह सकती, प्लेनर भी रह सकती, ऑक्टाहेड्रल भी रह सकती, डिपेंडिंग अपॉन ये इन्हें किसके ऊपर है? डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड। भाई जैसा पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट है वैसा थाईयूरिया है क्या? वैसा जो है तो अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट है क्या? सबका स्ट्रक्चर, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा है क्या हमारी केमिस्ट्री के तहत? नहीं। नो सर। किसी के अंदर आइटम्स कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर सिंगल बॉन्ड ज्यादा है तो डबल बॉन्ड कम है, किसी के अंदर नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर सेम, किसी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मींस ऑफ कोर्स द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंसर्न्ड और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर भी रहता, कुछ डम्बेल शेप भी रहता है कि नहीं? अभी और देखेंगे हम, बॉन्डिंग में भी हमारे पास आएंगी बात हो, लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एटम में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड देयर ज्योमेट्री और दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गिव राइज टू ए नंबर एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। समझा? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो आगे। और जी सर। दो टर्म समझ गए अपन अभी तक? कौन से दो टर्म देखे? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखे। और एक टर्म की डेफिनेशन समझने की, किसके ताल्लुक से चल रहा, फिर एक बार रिवीजन करें, समरी करें। किसकी बात चल रही है अपनी? क्रिस्टल।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो कि खास क्लोज्ड पैक रेगुलर पीरियोडिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, बराबर है क्या? सारी बात किसकी? पीरियोडिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब उसमें और एक टर्म का इजाफा करने का, बहुत सारे समझने के बाद, कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसको बोलते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सुन लीजिए बहुत केयरफुल है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया अभी? आर यू, फिर एक बार रिपीट करता हूं, आर यू एग्री दैट लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल? क्या इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक? Yes, sir. यूनिट सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है Yes, sir. स्ट्रक्चर का। एक यूनिट सेल जो किसका बना हुआ रहता है जी? एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में क्या रहता है? Atoms. ये एक क्या हो गया? आपका यूनिट सेल हो गया। ऐसे कई यूनिट सेल का मिलके क्या बनता? आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता। आप ये मान रहे बात को? Yes, sir. आप ये भी Yes, जानते sir. कि आप ये भी जानते हैं कि ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को क्या चीज है ना, आपको जब जाके अपन यूनिट सेल बोलते हैं उसको एक्स वाई जेड या ए A, B, C. बी और सी, बराबर है? C. ये हो गया एक यूनिट सेल। ऐसे कई यूनिट सेल का मिलके क्या बनता? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि मिसाल तौर पर ये एक ईंट है और दीवार में ऐसे कई ईंट लगा के अपन क्या बनाते? दीवार बनाते। आर यू एग्री? फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले भी हुआ था। Yes, sir. ये क्या हो गया? Yes, sir. ये क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया। ये यूनिट सेल वैल्यूम रखेगा नहीं क्या जी? ये एक यूनिट सेल है, इसका वैल्यूम है कि नहीं कुछ तो भी? Yes, sir. जी कोई भी शक्ल का रहेगा, क्यूबिक रहेगा तो क्यूब का वैल्यूम सबके अलग अलग रहते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है किसी का पाई आर स्क्वायर, बराबर है? मानते ना आप इसको? हर शक्ल, जी। हर किस्म की ज्योमेट्री का Yes, sir. वैल्यूम मालूम करने का फार्मूला अलग अलग है कि नहीं मैथमेटिक्स में? क्यूब है तो उसका वैल्यूम अलग Yes, sir. करेंगे, मुस्ततिल है तो उसका अलग करेंगे, मुरब्बा है तो उसका अलग करेंगे। आर यू एग्री विद दिस वन? सो कैन यू गेटिंग दिस पॉइंट दैट एवरी यूनिट सेल, तो किसका भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर करो, हर यूनिट सेल अपना कुछ तो भी वॉल्यूम रखता। आर यू एग्री? आर यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये यूनिट सेल के अंदर कौन है जी? ये बाउंड्रीज में, ये कॉर्नर को या बीच में कौन रहते? Atoms. एटम्स रहते। तो एटम्स को भी वॉल्यूम रहता कि नहीं? ये Yes, sir. Yes, sir. ये एटम जो है तो कहाँ पे अपना वॉल्यूम जो है तो ऑक्युपाइड कर रहे हैं? किसके अंदर? एटम किसका हिस्सा है? Unit Cube. cell का. Unit cell. सेल का। तो आप मुझे ये बोलिए कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम, Atom. Atom. Space. वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे कि नहीं? मिसाल तो पे ये पहले एटम ने इतना यूनिट ऑक्युपाई करा, बराबर है क्या? ये दूसरे एटम ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करा, ये तीसरे एटम ने इतना ऑक्युपाई करा, पांचवें ने, छठे ने, सातवें ने, आठवें ने, यानी कि आठों ने 8 मिलके मिसाल के तौर पर 10 जो है तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है तो क्या कर लिए? वॉल्यूम खा लिए। उनका हजम इतना है सबने मिलके। और उसके बाद यूनिट सेल का भी वॉल्यूम है कि नहीं? नहीं समझ रहे आप? Yes, sir. Yes, sir. So this ratio of the volume occupied by the atoms unit cell divided by total volume of this unit cell is nothing but it is called as the atomic packing factor. It is called as atomic packing factor. Packing factor. समझ में आ गया कि आपको किसको बोलते थे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? Yes, sir. यानी कि एटम यूनिट सेल में एटम ने लिया हुआ वैल्यूम बटे टोटल यूनिट सेल का वैल्यूम इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं पैकिंग फैक्टर। समझ में आ गए तीन टर्म्स? कौन से देखे अपन अभी के इस पीरियड में? तीन टर्म्स। पहला एटॉमिक रेडियस, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट या दो बॉन्ड में न्यूक्लियस से उनका जो है तो डिस्टेंस, क्लोजर डिस्टेंस कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। दूसरा क्या देखे? कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है। और तीसरा क्या देखे? एटॉमिक। Atomic packing factor. समझ में आया कि तीनों डेफिनेशन क्या? और एक बार रिपीट करूं? No, No, sir. sir. आया. Now after having seen
द डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक फैक्टर, वन मोर थिंग जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है अपने, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। वाइड स्पेस किसको बोलते हैं? द वैकेंट स्पेस लेफ्ट, बोलते ना खाली जगह थोड़ी देर के लिए, वैकेंट स्पेस लेफ्ट या अनयूटिलाइज्ड स्पेस इन द यूनिट सेल is commonly called as void space। भाई इतना यूनिट सेल था ये, अभी मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ करा था ना, देखिए ना आपने, Yes, sir. तो यूनिट सेल इतना बड़ा था, उसमें का 8 मुकामात पर 6 मुकामात पर एटम्स ने कुछ जगह कुछ वॉल्यूम कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ स्पेस इसके बाद भी खाली रहेगी, रहती कि नहीं, दिखती कि नहीं आपको खाली? Yes, sir. सारे उतार के देखिए, Yes, तो sir. आप देखिए, आगे भी देखेंगे आप। तो वो जो खाली स्पेस है या जो वैकेंट प्लेस है या अनयूटिलाइज्ड स्पेस है यूनिट सेल के अंदर की, इट इज मोस्ट कॉमनली नोन एज इंटरस्टेलियर स्पेस, और यू मे कॉल दिस एज वाइड स्पेस। इसका एक फार्मूला भी दिया उसने कि वाइड स्पेस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस टोटल इंटरस्टेलियर स्पेस इनटू 100, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पर। चलिए 3 टर्म्स हो गए हमारे, कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होते बता दिए, एटॉमिक रेडियस बता दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो हिसाब से अपन अब एक एग्जांपल के 2 अलग अलग पैकिंग फैक्टर के। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है क्या ये? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मानते हैं आप इसको? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है बोल के अगर मानते हैं, Yes, sir. क्या उसकी बुनियाद? कॉर्नर पे, यस कॉर्नर पे यस यस, दैट मींस द आइटम्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। 8 है, अनम्यूट रहने दिया अपने आप को यस नो बोलने के लिए। 8 है टोटल, 1 यस सर, 4 5 Yes, sir. 8। यस तो फिर इफेक्टिव नंबर, अब ये अपना हर एक अपना कितना हिस्सा देता मैंने बताया था, 8 हिस्सा देता अपना पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, है कि नहीं? इन्हें अपने, क्योंकि 8 का कॉर्नर पे है तो 8 मिला के एक यूनिट बना ना ये यूनिट सेल। तो हर एक अपना पहले देखिए अपन Yes, sir. हिस्सा देता है 1/8। तो टोटल कितने हुए फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव है तो 8, लेकिन हर मिला के कितना है? 8 इंटू 1/8 इंटू इज इक्वल टू, ये हुआ ना? 1, पहले भी हुआ ना? 1. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक रेडियस r इज इक्वल टू a/2, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ के यहाँ तक कर लीजिए, a/2। नियरेस्ट नेबर यानी कि 2 रेडियस, यानी कि रेडियस अगर r है, नियरेस्ट नेबर का रहेगा डायमीटर से यहाँ तक, r इज इक्वल टू कितना है? r इज इक्वल टू a/2 है तो 2r इज इक्वल टू ए, एक्सिस वहां का पूरा x का सेल पैरामीटर का A. है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर वहां से वहां कितने रहेंगे क्लोज एटम के तहत? 6। 6. 6, चलिए अब ये अलग अलग आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। ये ऊपर वाली एग्जांपल में यहाँ पर एटॉमिक फैक्टर वगैरह निकालने का है, क्या फार्मूले से निकलेगा एटॉमिक फैक्टर? 1/4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, वेयर a इज कितना? 2r। अब भी बोल, वो हिसाब से अगर देखें तो वाइड स्पेस का फार्मूला, ये एग्जांपल इज पोलोनियम, ये जो मैंने अभी फिगर पीछे गए ना, पोलोनियम का स्ट्रक्चर है, एग्जांपल के तौर पर ले रहे, क्योंकि a यहाँ से यहाँ तक कितना है? a है, तो यहाँ से यहाँ तक का अभी बोले थे ना पूरे 2 को जुड़ाने वाला, ये क्या कहलाया था? ये इतना रेडियस, रेडियस, यहाँ Radius R. रेडियस r, इधर का भी रेडियस r, तो दोनों मिला क्या हुआ फिर? ए, 2R. अच्छा आपके सामने से स्क्रीन चले गई क्या? स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. हाँ इसके आ रही सर, अब नहीं आ रही सर, अब आ रही है? Yes, sir. यस सर, चलिए तो ये पोलोनियम की एग्जांपल। बीसीसी स्ट्रक्चर बॉडी बेस है ना, पैकिंग फैक्टर, इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 8, 2. अब यहाँ पे 2 इस वास्ते के बॉडी फेस का भी है ना मामला। एटॉमिक रेडियस यस, r इज इक्वल टू √3/4, नियरेस्ट नेबर
क्योंकि ये जो रेडियस रहेगा उसका डायमीटर 2r इज इक्वल टू दिस मच। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8. 8. यहाँ पर कमोबेश वही मामला। फिगर देखिएगा, जी एटॉमिक फैक्टर फार्मूला A24/3 पाई r क्यूब A क्यूब, लेकिन एयर क्यूब कितना है वहां पे, फार्मूला। एग्जाम्पल इज लिथियम एंड क्रोमियम। ये आपको मालूमात के लिए बता रहे, एक आधा एग्जाम्पल पूछ लिए तो पूछ भी ले, वरना एमसीक्यू में तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूछ सकता हो। क्या पूछ सकता है कि भाई बीसीसी स्ट्रक्चर में पैकिंग फैक्टर इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर एग्जाम्पल क्रोमियम इज, तो अपने को ये हो सकता है ये इसमें से कोई पार्ट पूछ ले एमसीक्यू के तौर पर, इसलिए बता रहे आपको। एफसीसी सिंपल क्यूबिक हो गया, बीसीसी हो गया। एफसीसी बोले तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर। इसके अंदर का ये पार्ट तो मालूम है तुम्हारा, है क्या, फेज सेंटर एक yes sir. यस। एटॉमिक रेडियस इसके हिसाब से, नियरेस्ट नेबर ये जो रहेगा इसका 2r, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खाली अब आगे चलता हूं मैं। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, डायमंड ऐसा कैसा, डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ interpenetrating FCC sublattices along with the body diagonal 1/4 cube H। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, दिख रहा क्या? स्ट्रक्चर देखो, खाली जहन में रहने दो, तो कभी कभी स्ट्रक्चर एमसीक्यू के तौर पे पूछ सकता हो। वन बाय 8 2 8 8 एटॉमिक रेडियस दिख रहा, पीला कलर दिख रहा आपको? यस सर। तनाजा Yes sir. देखिए, ये स्ट्रक्चर है। ये अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 102 मर्तबा और भी देखिएगा जाके किताबों में, लेकिन बता रहे आपको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन एटम पोजेस दिस स्ट्रक्चर, इतने एटम्स का ये स्ट्रक्चर रहता। तो बता रहे आपको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके आंख के सामने से गुजरना है। So 2 minutes are still remaining. If you want to ask any question, you may ask. ठीक है? नो सर। No sir. जी So we shall stop here today. Still 1 or 2 articles are remaining जो कि important है examination point of view से, that we will take inshallah in the next day। क्या अगले जुमेरात से जो है तो same time